Good evening. Good evening. हेलो। वहाँ व्हाट्सएप में मिला है मैसेज अभी। अभी मिला है मैसेज। Did you get the message now? अभी जो मैंने अभी एक मैसेज दिया वो मैसेज मिला है। Okay. So now today we shall be working on verb. We shall be working on verb. आज हम कुछ वर्ब के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्या वर्ब है, कैसा है, उसको हम जानेंगे। वर्ब क्या होता है और इसका यूज कहाँ हो, सेंटेंस में कैसे लगाया जाता है। सो एवरीथिंग अबाउट वर्ब वी शैल बी नोइंग, बट बिफोर वी नो we proceed to the new topic. I just wanna let me just I just wanna know where is your homework. Did you made your homework correction? Did you have your homework ready with you? Yeah, one sentence only. And which sentence you wrote, please write in the WhatsApp and send it now. Okay, please send it in the WhatsApp. Okay, let me check. Let me check. Ram done the work promptly. Ram done the work promptly, not Ram has done the work promptly. ये होगा। ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्टली डन तो नहीं बिठा सकते, यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी वर्ब होना ही चाहिए, नहीं तो ये नहीं आएगा ऐसे। ओके, सो आज हम वर्ब के बारे में सीखेंगे एंड my discussion will be on English. I will try to speak in English. If you don't understand anything about what do I say, then you just ask me after my discussion is over. मैं आपको इंग्लिश में ही डिस्कशन करना करूँगी। अगर आपके इंग्लिश का डिस्कशन मेरा इंग्लिश में जो अगर आप समझ में नहीं आ रहा है, तो जब डिस्कशन ओवर हो जाएगा तभी आप क्वेश्चन करना मुझे। आपका क्वेश्चन करना लाज़मी है, आपका क्वेश्चन करना मैंडेटरी है। और क्वेश्चन करने के लिए ही नहीं बैठना कि क्वेश्चन करने के लिए मैंडेटरी है इसलिए मैं क्वेश्चन ढूंढता रहता हूँ, ढूंढना शुरू कर दूं अभी से, ऐसा भी नहीं करना। क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो आप समझोगे नहीं, आपका दिमाग ढूंढने में लग जाएगा, समझेगा कम जो मैं समझा रही हूँ। इसलिए क्वेश्चन करने के समय भी दिए जाएंगे, इसके लिए आप मत सोचिए, आप सिर्फ सुनिए कि क्या चीज़ है, वर्ब का क्या है, इसके बारे में क्या-क्या थोड़ा बहुत जो है मैं थोड़ा बोलूँगी, आप इसे सुनना। लिखते-लिखते मैं बोलूँगी, आप सिर्फ सुनना। You just listen it and nothing else to do now. Okay, let's start. We shall be knowing about verb, and verb are formed into categories. Number one you can see, that is auxiliary verb. Auxiliary verb means when I say auxiliary verb, then you have to understand the auxiliary verb is, am, are, was, were, okay, has,
had, something like that. These are auxiliary verb. Auxiliary means helping. Auxiliary means helping verb, because sometimes these helping verbs are need to complete the sentence. That's why we are using auxiliary verb. But number two is, besides auxiliary verb, we have another kind of verb, that is main verb. That is main verb. And what is the example of that main verb? That means main verb: do, then walk, then go, then come, sleep, then dance, sing, eat, play, something like that, etc. etc. means there are more verbs are there. We shall be knowing according to the time, but sometimes these are the general things, general verbs we are using in on daily basis in the time of speaking English. So main verb, these are the main verbs. Main verbs means these are in simple form. They have done it their simple form. But if we want to take them in another form, that means verb number two. This is verb form number one. So verb number two, what will be? Do will be did. And that is called कर लिया था, कर लिया. ओके. डू मीन्स करता है, और डिड मीन्स किया है या किया था. दैट इज. देन व्हाट विल बी द सेकंड वन? वर्कड. देन गो विल बी went, went. Then come will be came. Then sleep, slept, slept. Dance will be danced. Then eat will be ate, ate. Play will be played. तो प्ले का जो है खेलता है या खेलती है, और जब यहाँ पे ईडी लग जाएगा तो खेल लिया था या खेला था या खेला था या खेल चुका था, ऐसा है. ओके. सो तो प्ले में अगर खेलता है तो प्ले में अगर खेलता है तो ये प्लेड क्या चीज है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेड? दैट वन ऑल्सो आई विल बी कंफर्मिंग यू. प्ले जो है वो प्रेजेंट फॉर्म में होता है. प्ले का होता है प्रेजेंट फॉर्म. प्ले हर वक्त प्रेजेंट फॉर्म में रहता है. मैंने कोई भी एक वर्ब ले लिया, ये हर वर्ब के लिए सेम ही है. प्ले होता है प्रेजेंट फॉर्म में. अगर हम पास्ट बना देंगे, मतलब अतीत, अगर ये काम हो गया है, जो काम हो जाता है उस पर उसको हम लगा देते हैं प्लेड. तो ये हर किसी के लिए नहीं, जैसे ईट के लिए है, गो के लिए वेंट होता है, काम के लिए केम होता है, तो सब में ईडी नहीं लगता, दूसरा दूसरा होता है. सो अकॉर्डिंग टू द वर्ड we are using according to the time. That means play is present and played is past. प्ले खेलता है, प्लेड खेल चुका था या खेलता था, खेल चुका है लाइक दैट. मतलब जो बीत गया दैट इज पास्ट, और जो अभी है दैट इज प्रेजेंट. ओके, अंडरस्टूड. अभी हम क्या करेंगे? प्रेजेंट फॉर्म में एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ. ओके. नाउ आई एम, मैं खेलता हूँ, यो खेलता है, दैट इज आई प्ले. आई प्ले, इसका होगा आई प्ले.
अभी आई प्ले को अगर मैं ये करूं आई प्लेड, अगर मैं यहाँ पे लिखूं आई प्लेड, देन इट विल बी मैंने खेला था, मैंने खेला था, या मैं खेल चुका था, ऐसा है। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन? प्रेजेंट में मैं खेलता हूँ, आई प्ले, आई प्लेड, मैंने खेला था, दैट इज व्हाट इज वर्क, and I play, work is still going on, I do play every day, it is a plan, it is a work of habit in the present, but in the past मैं खेलता हूँ, मैंने खेला था, I played। ओके, तो वर्ब के बारे में हमें जाना, वो ऑक्सिलरी वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, वाज, वेयर, और सेकंड जो वर्ब है वो है मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या होता है, अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट फॉर्म का रहता है वर्ब, अगर पास्ट फॉर्म में है सेंटेंस तो इसका पास्ट फॉर्म बन जाता है वर्ब। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड?